Good morning, students. Welcome to e-learning program. Myself, Kunal Sharma, your mathematics teacher, and today we are going to start. We are going to learn in this video how to calculate compound interest using formula. Okay. So yesterday we have seen calculating compound interest without formula, and in this video today we are going to learn how to use formula to calculate compound interest. So the formula for calculating compound interest we have how to calculate if we have say principal is p is principal. Okay, rate is equal to r percent and time is equal to n years. Time equal to n years, then amount a is equal to amount after n years. So the formula is amount equal to p into 1 plus r by 100 power n. This is the formula. Using this formula you can directly calculate how to calculate amount after n years, and after that, after when you calculate the final amount using this formula, you can directly calculate the final amount after n years, and after finding the amount you can calculate compound interest using formula a minus p. Compound interest is a minus p. Okay, so suppose we have so this is the formula. This is the formula when compounded, when interest is compounded annually. When interest is compounding annually, then this is the formula we have. Now let us take an example. Suppose that principal is equal to rupees 10,000. Rate is equal to say R. R is equal to 10%, and time N is equal to 3 years. Time is equal to 3 years. Then you can calculate the amount directly after 3 years will be equal to P 10,000 into 1 plus R means 10 by 100, rate is 10 by 100 power 3. You can solve it and you will get directly the amount. You can solve it and you can directly get the amount, and then after that, using this formula compound a minus p, you can get the compound interest. So in this formula we will apply. Now अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला. Now next case आता है. Second case is if suppose that during first year वही प्रिंसिपल पी है. अगर रेट वेरी करता है, इफ द रेट वेरी डिफरेंट ईयर्स में रेट डिफरेंट होता है. सपोज दैट इन फर्स्ट ईयर रेट है मेरा पी. सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, ठीक है, रेट है मेरा क्यू.
एंड थर्ड ईयर रेट है मेरा आर, ठीक है। तो अगर रेट डिफरेंट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर रेट पी है, सेकंड ईयर क्यू है, थर्ड ईयर आर है, तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, फाइनल अमाउंट आफ्टर एन ईयर, ठीक है। ये सेकंड केस है जब रेट वेरी करता है, व्हेन रेट वेरी, ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो अगर हर एक साल रेट अलग अलग होगा, सपोज दैट पहला साल पी है, दूसरा साल क्यू है, तीसरा साल आर है, तो हम डायरेक्टली अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल से कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज दैट पहला साल रेट है क्या R1, ठीक है, दूसरे साल कर दो R2 और तीसरे साल क्या है R3, ठीक है, रेट अलग अलग। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा P, यहाँ पे लिखना है P इंटू पहले साल क्या है 1 प्लस R1 बाई 100, ठीक है, ये फर्स्ट पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या करें, लिखेंगे 1 प्लस R2 बाई 100, और फिर तीसरे साल के लिए फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस R3 बाई 100, ठीक है। ये पहले साल के लिए 1 प्लस R1 बाई 100, दूसरे साल के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस R2 बाई 100, और तीसरे साल के लिए 1 प्लस R3 बाई 100। इस तरीके से हम डायरेक्टली अमाउंट और एक बार अमाउंट डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स, और एक बार अमाउंट निकल जाएगा तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला CI इक्वल टू A माइनस। सपोज दैट यदि रेट पहले साल रहता है, पहले साल 10% रहता है, ठीक है, पहले साल कितना रेट है 10%, दूसरे साल है 20%, और तीसरे साल रेट कितना है 30%, तो हम यहाँ पे अमाउंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल है वही 10,000, प्रिंसिपल है ₹10,000, तो कैसे निकालेंगे, ₹10,000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 पहले साल के लिए, इंटू 1 प्लस 20 बाई 100 इंटू 1 प्लस 30 बाई 100, ओके। इस तरीके से हम अमाउंट निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और अमाउंट निकल जाएगा, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, A माइनस P। नाउ अब नेक्स्ट केस देखते हैं। थर्ड केस है, यदि टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, सपोज t इज इक्वल टू 2 होल 3 बाई 5 ईयर्स, ठीक है, यदि टाइम मिक्स फ्रैक्शन में, ये थर्ड केस है, ठीक है, इफ आवर टाइम इज इन मिक्स फ्रैक्शन, इफ टाइम इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तब हम कैसे अमाउंट निकालेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, तो अमाउंट आफ्टर दिस मच ईयर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n होता है, यहाँ पे क्या करना है, P इंटू R प्लस 1 प्लस R बाई 100 दो बार लिख देना है मिक्स फ्रैक्शन के केस में, 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। अब ये P इंटू 1 प्लस R बाई 100 1 प्लस R बाई 100 दो बार लिखेंगे। अब क्या होगा, ये जो इंटीजर पार्ट है, देखो यहाँ फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये जो इंटीजर पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके पावर में आ जाएगा, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर 2, ठीक है। और ये जो बचा फ्रैक्शनल पार्ट 3/5, ये 3/5 क्या होगा, यहाँ पे रेट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, 3/5 क्या होगा? ये 3/5 यहाँ पे रेट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से फॉर्मूला सेट होगा। ये 3/5, ये जो 3/5 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये याद रखना है, ये इंटीजर पार्ट 2 दो बार लिखना है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 इंटू 1 प्लस r बाई 100 दो बार लिख लेना। जो ये 2 है इसका इंटीजर पार्ट आगे वाला वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, और 3/5 जो है वो रेट के साथ, सेकंड वाले रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बस इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज दैट यदि रेट रहता 10% और प्रिंसिपल रहता ₹10,000 और टाइम यही रहता, तो कैसे लिखते हैं अमाउंट? अमाउंट इक्वल टू होता P 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100। रेट कितना है? 10/100, ठीक है। 1 प्लस 10/100 दो बार लिख लेंगे, 1 प्लस 10/100। अब ये जो 2 है, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और ये 3/5 क्या होगा? यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3/5 इसके रेट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3/5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 5 2 जा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, तो ये हो जाएगा क्या? 6/100, 1 प्लस 6/100, यानी ये हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 6/100। इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? a माइनस पी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सभी केस में यही फॉर्मूला होगा, a माइनस पी। नाउ थर्ड केस देखेंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या करता है? डिप्रिशिएट करता है, डिक्रीज करता है, या डेप्रिसिएट करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आने वाले साल में डिक्रीज या डिप्रिशिएट कब कर सकता है? सपोज दैट पॉपुलेशन किसी जगह का घट रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर किसी प्लेस का या किसी शहर का घट रहा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंड रेट के हिसाब से, या फिर या पॉपुलेशन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया वो घट सकता है, या फिर वैल्यू ऑफ अ मशीन, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ मशीन, ठीक है। सपोज दैट एक कार खरीदे हम या कोई मशीन खरीदते हैं, तो आने वाले साल में उसका प्राइस क्या होता है? उसका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। तो उस केस में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये डिक्रीज वाला। ये वो सिचुएशन है जहां पे वैल्यू क्या करता है? हर साल डिक्रीज करता है, तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट, ठीक है। हमारे पास सब कुछ यही है, प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, टाइम एंड ईयर्स है, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा? सिर्फ चेंजिंग क्या करते हैं? पी इंटू वहां पे था 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस r बाई 100 पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 माइनस r बाई 100 पावर n। ये फॉर्मूला हो जाएगा कब? जब अमाउंट वैल्यू डिक्रीज करता है, ओके। सो अब ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा टू सॉल्व exercise 11b 1 to 15. Okay students, thank you, thanks for